on this. Yeah, we'll start with a new chapter. Give the heading TDS, tax deducted at source. Tax deducted at source, TDS. Section series is section number 192 to section number 195. तो ये लोग 196 भी बोलते हैं, otherwise you can write 196 also. Section number 192 to section number 196, TDS. Important है, most important chapter. That too for 4 marks. 4 mark के लिए आता ही आता है TDS. Tax deducted at source, mostly for 4 marks. You can expect this chapter for 4 marks. थोड़ा टेस्टिंग हार्ड रह सकता है इस बार मेरे हिसाब से. What I am expecting in TDS chapter. We'll start with the introduction. What do you say? Yes, sir. Yes, sir. Point number 1. लिखो मेरे साथ लिखते रहो फिर नोट्स बना लेना. Yes, sir. Point Yes, number sir. 1. कादिर तेरा कैमरा थोड़ा एडजस्ट करना पड़ेगा यार. You're I'm able to see you off. नहीं सर, फोन चार्जिंग पर है सर. Okay, चलेगा फिर रहने दे. No issues. Let it be. अब तो पूरा ही घुमा दिया. वही करना पड़ा. हाँ चलो ये अच्छा है. This view is good. We'll start. अटका दो कुछ पर अटका दो. First one. TDS refers to tax deducted at source. TDS refers to tax deducted at source. At source मतलब what you know? When you are earning income, from which person you are earning income, that person will deduct TDS for you. जिस person से आप पैसा कमा रहे, hello, यस सर. Yes, sir. जिस person से आप पैसा कमा रहे, वही बंदा आपका TDS deduct कर देगा. मतलब imagine if I am earning from Infosys company, say salary income, then who will deduct my TDS? Infosys company. Infosys company will deduct the TDS. Am I clear? Yes, sir. Yes, sir. 1 minute. इसको सेट करना है ऊपर. ये क्यों नहीं सेट होता रे ऊपर? क्या सर? सर आप अपने आप को पिन कर लो सर. हो गया. क्या करूं? पिन बोल के रहता सर. पिन कर सकते हैं क्या? हाँ सर, हाँ, कर सर. सकते हैं. पिन सिर्फ करे तो क्या आप ही होता? बता दे. सिर्फ आप ही आपके- बता दे. मतलब किसी की आवाज आई तो वो बड़ा हो जाता है ना सर. वो नहीं होता. नहीं वो नॉट रिक्वायर्ड. वो तो एडजस्टमेंट हो गया. ओके. पॉइंट नंबर 2. consider the following example. Now we'll take example रहेगा so that you will understand some terms. Consider the following example. Shall I? Yes, sir. Yeah. X Limited is a company. A company है called X Limited. Okay. Mr. X is a professional. Mr. X is a professional. Maybe chartered accountant, engineer, lawyer, जो भी है. Mr. X is a professional. Mr. X has rendered services to the company. इन्होंने अपनी सर्विसेज दी कंपनी को इन प्रोफेशनल कैपेसिटी. एक्स लिमिटेड ने सर्विस ली किससे? मिस्टर एक्स से. एक्स में बोलता हूँ, ए बोल देता हूँ, है ना, कंफ्यूजन नहीं रहेगा. Yes. तो एक्स एक्स हो जाएगा. एक्स लिमिटेड हैज टेकन सर्विसेज फ्रॉम मिस्टर ए इन प्रोफेशनल कैपेसिटी. नो along with the services, सर्विस देने के बाद वो क्या करेगा? ही विल रेज अ बिल. डू यू एग्री? यस सर. Yes, sir. उन्होंने बिल और इनवॉइस दिया है अपना, से ₹5 लाख एक्सक्लूडिंग जीएसटी. उन्होंने अपने 5 लाख का बिल दिया है. बिल देने के बाद क्या होगा? Now X Limited has to make payment to A. Do you agree? यस सर. Yes, sir. तो गवर्नमेंट क्या बोलती है अभी? गवर्नमेंट बोलती है X Limited को, भाई X Limited from you Mr. A is earning. यस सर. No, Yes, he has फ्री में तो कमाई नहीं रहा है. Mr. A has given services for which he has raised a bill. Then you are supposed to make the payment. यस सर. Yes, अभी यहाँ sir. पे इनकम कौन कमा रहा? मिस्टर ए कमा रहा. तो गवर्नमेंट को डाउट है मिस्टर ए टैक्स भरेगा नहीं भरेगा, एटलीस्ट मिनिमम टैक्स यहीं पे कलेक्ट कर लेंगे. तो विद दैट गवर्नमेंट ब्रॉट द प्रोविजंस ऑफ व्हाट यू नो TDS. नो Yes, व्हाट sir. they will ask X Limited, when you are making payment to Mr. A, why don't you deduct TDS? Am I clear? तो Yes, X sir. Limited क्या करेगा? ध्यान से सोचो. बिल अमाउंट कितना है बोलो? 5 लाख. वेरी गुड. हाँ. 5 लाख. उससे वो लोग क्या करेंगे? TDS डिडक्ट कर लेंगे एट द रेट ऑफ 10%. 10%. सर ये रेट कहाँ से आ गया सर आपको? दिस इज गवर्न बाय Example. सेक्शन 194J. 194J. अच्छा. Yes, sir. 194J में TDS का Yeah. रेट है कितना? 10%. 10%. सर व्हाई इट इज 194J? TDS का एक सेक्शन है which deals with professional services. Professional services. ओके. कितना है रेट सर? 10%. तो they will deduct 50,000 rupees.
Yes, डिडक्ट sir. Yes. करके how much they'll make payment? 4,50,000. 4,50,000. पेमेंट टू मिस्टर ए वुड बी ओनली 4,50,000. इसका चेक बन के इनको पेमेंट चले जाएगा. तो इनडायरेक्टली लेमैन वर्जन पेमेंट शुड बी मेड नेट ऑफ टीडीएस. Yes. डू यू एग्री? Yes, Yes, sir. sir. ओके. अभी एक्स लिमिटेड को हम लोग क्या बोलते हैं? एक्स लिमिटेड इज कॉल्ड डिडक्टर और पेयर भी बोल सकते हैं आप. ए को हम लोग क्या बोलेंगे सर? Deductee. या डिडक्टी. पेयर और हाँ पे. अरे बोलो ना. Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. पेयर पे. मतलब the whole chapter is applicable in the hands of whom, you know? It is applicable in the hands of Payer. पेयर. पेयर Yes, के sir. हाथ में है पूरा चैप्टर. Yes, पेई sir. को क्या है? पेई को पैसा आना है. वो पैसा नहीं बल्कि खुद टैक्स भरना है इन द फॉर्म ऑफ एडवांस टैक्स. बट गवर्नमेंट कैलकुलेशन है, मिनिमम टैक्स यहीं पे कलेक्ट कर लेंगे तो बेटर है. अकाउंटेबिलिटी आएगी. So they will Yes, ask the sir. deductor to deduct TDS and then make net payment to the person who is supposed to earn income. Yes, sir. Yes, sir. है clear? Okay. Yes. अभी ध्यान से सुनो. इस अमाउंट का क्या होगा? ये अमाउंट तो डिडक्ट हो गया. ये किसका पैसा है? A का. A का पैसा है. वेरी गुड. X का नहीं है ये. This income belongs to A, so this should be deposited. This should be deposited to Government of India. Yes, sir. That By is file. Income Tax Department. Filing return. Yeah, this should be deposited to Government of India by that is Income Tax Department, and this is called TDS payment to government. TDS payment और TDS deposit भी बोल सकते हो आप. ये TDS payment है, TDS deposit है. प्रैक्टिकल लाइफ में ड्यू डेट है 7th of the next month. वो सब नॉट रिक्वायर्ड है. Yes, sir. प्रैक्टिकल लाइफ में ड्यू डेट है 7th of the next month. If you are deducting TDS in this month, April, we should deposit on or before 7th of the next month. Yes, You sir. know, Yes, अगर sir. लेट डिपॉजिट करते हैं गवर्नमेंट को, Late गवर्नमेंट विल fee. चार्ज 1% interest per month. Yes, Late sir. fee. Okay. Yes, sir. Okay. Oh, late fee. After making payment of TDS, what happens in practical life? You know, TDS return should be filed. Mhm. TDS return is filed. ये सब काम कौन करना है? पेयर ही करना है. Company. तो पेयर, हाँ, कंपनी. In my example, company should deduct TDS, then they should deposit the TDS, then they should file TDS return. Yes, sir. In practical life में TDS return is filed on quarterly basis. अप्रैल, मई, जून का रिटर्न जुलाई में जाता है. हेलो. Okay, sir. Yes, sir. Yes. अभी आपने पैसा तो भर दिया, 50,000 rupees भर दिया. ये 50,000 किसका है? गवर्नमेंट डज नॉट नो, Yes. because logically this money belongs to whom? This belongs to Mr. A. Mr. A. तो कंपनी क्या करती है? हजारों लोगों का TDS रोकती है. सी कंपनी ऑब्वियसली बहुत लोगों का TDS रोकेगी ना. रेंटल पे रोकेगी, ऑब्वियसली कॉन्ट्रैक्ट पेमेंट्स पे रोकेगी, बहुत सारे पेमेंट्स पे. दे विल डू कंसोलिडेटेड TDS, दे विल डिपॉजिट इन वन चालान. Yes, 15 sir. लाख रुपए जमा Yes. कर दिए गवर्नमेंट को. गवर्नमेंट डज नॉट नो दिस मनी बिलोंग्स टू हुम. तो गवर्नमेंट बोलती है भाई हमको ब्रेकअप तो दो, ये पैसा किसने डिपॉजिट किया है, किसके लिए डिपॉजिट किया है. द पर्सन डिपॉजिटिंग TDS इज नथिंग बट एक्स लिमिटेड हियर. Yes, sir. Yes, So they sir. will Yes, file sir. a return. उसको हम लोग बोलते हैं TDS return. In TDS return, we have to provide complete detail for what payment is made, for whom deposit is made. What is the payer, payee का PAN number, payee का PAN number क्या है, payee का नाम क्या है, कौन से section के नीचे TDS deduct किया, what is the gross bill, what is the TDS deducted, at what rate the TDS got deducted, what is the total amount deposited. Yes, sir. Indirectly TDS return डालते ही government knows, oh, Mr. A has earned 5 lakhs from X Limited. चोरी से भी बच पाएंगी गवर्नमेंट. No, Mr. A cannot say नहीं मेरे को पैसा नहीं आया. क्यों? तो once the X Limited files the return with the government को पता है this PAN number with the name called Mr. A has earned 5 lakh rupees from X Limited, for which 50,000 deposited. Balance tax इनको भरना है अभी. In the form of advance tax or in the form of self-assessment tax. Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. मतलब एक साइकिल की तरह चल रहा है, and it's beautifully. गवर्नमेंट को भी पैसा टाइम पे आ जाता है. गवर्नमेंट आल्सो वांट मनी ना. पैसा टाइम Yes, पे आ जाए sir. तो अच्छा है. Yes, sir. चोरी करने से भी बचते हैं लोग यहाँ पे. और गवर्नमेंट को सब मिनिमम एश्योरेंस आ जाता है इनकम का. Yes. Am I clear? Yes, So, sir. no. So some additional points we will learn here itself. Note number 1. Note number 1. TDS chapter
is applicable. TDS chapter is applicable in the hands of deductor. Do you agree? TDS chapter is applicable in hands of whom? You know, deductor. मोस्टली डिडक्टर की ड्यूटी बनती है टीडीएस डिडक्ट करना. बोलो मेरे भाई. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Note number 2. TDS so deducted should be deposited to government on monthly basis. Normally TDS का चालान बनता है on monthly basis. Note number 3. TDS return should also be filed. TDS return should also be filed on quarterly basis. On what, sir? Quarterly basis. Quarterly basis. TDS return फाइल करना पड़ता है किसको? डिडक्टर को. क्वार्टरली बेसिस. Yes, sir. Yes, sir. प्रैक्टिकल लाइफ में यू टेल मी मिस्टर ए का इनकम 4 लाख 4.5 लाख से 5 लाख से ग्रॉस इनकम 5 lakhs. 5 lakhs. 5 लाख ही है. 5 lakhs है. मतलब व्हेन यू ऑफर इनकम इट शुड बी ऑन ग्रॉस बेसिस. नो मिस्टर ए कैन नॉट से नहीं मेरे को तो 4.5 लाख रुपए है ना 4.5 आई विल ऑफर 4.5 लाख इनकम. नो, योर इनकम इज 5 lakhs. Note of tax paid on this income is how much? 50,000. 50,000. Am I clear? Yes. Yes. So sir. point number 4, income should be computed. Income should be computed by payee. Income should be computed by payee taking gross. Do you agree? Yes, sir. That is before TDS. Note number 5. एक अच्छी ब्यूटीफुल चीज है. बोलो अभी समझो. आई एम द डिडक्टर एंड यू 3 पीपल आर डिडक्टी. मैं डिडक्टर हूं. मैं आप तीनों लोगों के लिए टीडीएस डिडक्ट कर रहा. नो व्हेन यू गिव द बिल टू मी आई विल डिडक्ट टीडीएस. आई विल डिपॉजिट टू गवर्नमेंट. आई विल फाइल रिटर्न. नो हाउ यू विल कम टू नो वेदर आई हैव डन माय जॉब प्रॉपर्ली और नॉट? तो लॉजिकली पैसा तो आपका है. तो गवर्नमेंट आपको भी कुछ फैसिलिटी देना है ना. दे शुड गिव सम फैसिलिटी टू द पेई टू वेरीफाई द टीडीएस. बिकॉज़ प्रॉब्लम क्या है? मैं टीडीएस रोक के हु नोस दिस 50,000 रुपीस आई विल पॉकेट इन माय अकाउंट. Yes, sir. Yes, गवर्नमेंट sir. सेज आप लोगों के लिए वी आर गिविंग यू अ फॉर्म, ऑनलाइन फॉर्म ओनली, फॉर्म 26AS. आप लोग ऑनलाइन उसको वेरीफाई कर सकते हो whether Ashwin Builder has deducted TDS or not, deposited or not, and whether it is properly reflected in the return. जैसे रिटर्न प्रोसेस होता है ना, आप लोगों का फॉर्म 26AS अपडेट हो जाता है. You can log into the income tax portal and you can see there whether TDS is properly reflected or not. Yes, sir. अभी हो Yes, सकता है मैं मुजफ्फर का TDS हेमंत के नाम पे डिपॉजिट कर दूं, हेमंत का TDS खादिर के नाम पे डिपॉजिट कर दूं, and chain of errors. Yes, sir. So if someone can bring to my notice, I'll do correction of my return. Am I Yes, clear? sir. Yes. Note Yes, number sir. 5. Note number 5. Payee can verify. Payee can verify the TDS. Payee मतलब Mr. A मेरे example में. Mr. A. Payee can verify the TDS by login to income tax portal and check form 16. 26. फॉर्म 26. 16 के बारे में बोला नहीं. फॉर्म 26 यस. फॉर्म 26 यस आप देख सकते हैं. ऑनलाइन ही है वो. हेलो. Yes, sir. sir. या वन मोर थिंग इज देयर. देखो कितने नोट है. तो चैप्टर स्टार्ट ही किया. नोट नंबर 6. सी नॉट ओनली दैट देयर इज अ ऑब्लिगेशन ऑन मी. मेरे पे एक ऑब्लिगेशन है कि आप लोगों का मैंने टीडीएस डिडक्ट किया ना. हाँ, sir. I should give you a certificate from my side only saying that sir this was the bill amount, this is the section in which TDS was deducted, this is the rate of TDS, this is the amount of TDS, this day or through this challan we have deposited, through this return we have filed it. वो पूरा पट्टा चिट्टा मैं आपको एक सर्टिफिकेट में देता हूँ. Invoice की तरह. Practically this is called a TDS certificate Certificate. Yes. and this is also given to you on quarterly basis.
Yes. तो मतलब once I file the return एक दो दिन में process हो जाता है. Once the return is processed, I have to download the certificate and give you a physical copy. Yes, sir. Yes, sir. प्रैक्टिकल लाइफ में फिजिकल कॉपी देते नहीं, बिकॉज डिजिटल सर्टिफिकेट व्हाट यू कॉल इट सर्टिफिकेट डिजिटली साइन करके आई कैन सेंड यू थ्रू ईमेल. Hmm. Am I clear? Yes, sir. Yes. So by chance you find any discrepancies either by seeing form 26 years or by seeing my certificate, you can come back to me and I'll do corrections. Yes, sir. कभी Yes, कभी sir. होता है ज्यादा टीडीएस डिडक्ट कर देते हम लोग, कभी कभी होता है कम टीडीएस डिडक्ट कर देते, कम टीडीएस डिडक्ट करते ना कोई नहीं आता, बोलता है अच्छा है हमको ज्यादा पैसा आ गया. But don't worry, there is an obligation on you to deposit the balance amount. Yes, sir. वो Yes, सब मैं sir. डिस्कस करता हूँ. पॉइंट नंबर 6 चले. Yes. Yes, Yes, sir. The deductor should issue form 16 and form 16A, form 16 and form 16A Salaried employee. to the deductee. फॉर्म 16 सैलरी के लिए, अदर के लिए फॉर्म 16 है. हेलो. Yes, sir. sir. Yes, sir. डीडीएस डिडक्ट करने के बाद आपको एक सर्टिफिकेट देना है, उसको लिख लो ब्रैकेट में, दैट इज सर्टिफिकेट ऑफ डिडक्शन ऑफ टीडीएस. सर्टिफिकेट ऑफ डिडक्शन ऑफ टीडीएस. अच्छा खासा पैसा आता है सर. हमें क्लियर? Yes, sir. तो आप Yes, लोगों sir. के लिए दो तरीके हैं टीडीएस वेरीफाई करने के. Either you can log into portal and check in form 26AS or you Yes. can demand the certificate. It's your right. आप पूछो सर हमारा सर्टिफिकेट कहाँ है टीडीएस का, हम लोग को देना पड़ेगा. Yes, sir. Yes, sir. इधर Yes, मैनुअली sir. देंगे, डिजिटली देंगे, वो सब देंगे आपको. ठीक है. Yes, sir. फॉर्म 16 and form Yes, sir. 16. Shall we move forward? Yes, sir. So this Yes, was sir. the second point. Point number 3. Sir. Okay. Sir, what is the timing of deduction of TDS? General point है. Timing of deduction of TDS. TDS कब डिडक्ट करना है? पेमेंट के टाइम पे, At सर्विस the time देते of ही डिडक्ट payment. करना है, बिल आते ही डिडक्ट करना है, पेमेंट के टाइम पे डिडक्ट करना है? बिल आते डिडक्ट Same. करना. अभी मैं आपको सर्विस दे दिया, Yes. आपको पता है 5 लाख की सर्विस है मेरी, Yes. बट आई डिड नॉट सेंड द बिल. अरे बिल देने की जरूरत क्या है, आपको पता ही है ना 5 लाख की सर्विस है. हाँ. आपने Yes. अकाउंटिंग एंट्री पास कर ली बुक में, व्हाट यू कॉल प्रोफेशनल सर्विसेज अकाउंट डेबिट टू अश्विन बिल्डा अकाउंट क्रेडिट, Yes, Yes. sir. एग्जांपल यार. तो आपने Yes, एंट्री sir. बना ली बुक्स में, आर यू सपोज टू डिडक्ट टीडीएस? Yes. Yes, करना sir. है. Yes, हाँ. sir. मतलब मैं क्या पूछना चाहता हूँ, सर्विस मैंने दी है, आपको पता है अग्रीड वैल्यू ऑफ सर्विस कितनी है, मे बी मैंने बिल Yes, भेजा sir. नहीं भेजा नहीं पता आपको, पर आपने एंट्री तो बना ली बुक्स में. Yes, sir. पेमेंट किया नहीं किया Yes, सेकंड sir. क्वेश्चन है. 99% विल नॉट मेक द पेमेंट बिकॉज़ मैंने तो बिल ही नहीं दिया आपको. Yes, sir. My doubt is, are you supposed to deduct TDS on the basis of entry in the books of accounts? समझ रहा? हाँ सर. Yes, sir. हाँ, sir. हाँ. तो point number 3 is all about timing of deduction of TDS. टाइमिंग ऑफ डिडक्शन ऑफ टीडीएस. टीडीएस कब डिडक्ट करना है? दो पार्ट में लिख रहा हूं. जनरली रूल क्या है? जनरल पॉइंट इज टीडीएस शुड बी डिडक्टेड ऑन और बिफोर. ऑन और बिफोर मतलब कंपैरिजन हो रहा है. देखो कहां से, ए ऑन और बिफोर द डेट ऑफ एंट्री. Which entry? Credit entry, liability entry. The date of entry in books of accounts, or B, date of payment, whichever is earlier. Timing of deduction of TDS is generally TDS should be deducted on or before the date of entry in books of accounts or date of payment, whichever is earlier. Which one? Yes. अरे बोलो ना भाई. Yes, Yes, sir. Yes, sir. ये है जनरल रूल. Shall we? Yes, Yes, sir. sir. However, हर चीज का एक्सेप्शन रहेगा. हाँ सर. However, in certain sections, TDS is deducted only on payment basis. Only on what basis?
पेमेंट बेसिस, Payment मतलब जब basis. तक पेमेंट नहीं होगा तब तक आप टीडीएस नहीं डिडक्ट करना. What I'll do, I'll write, छोड़ो अभी नहीं, सेक्शन नंबर के नाम बोलने के बाद बताता हूँ. और there are certain sections where TDS is deducted only on payment basis. मतलब एग्जाम में यहाँ पे भी टेस्टिंग हो सकती है. They can ask you to tell when to deduct TDS. जैसे आपको पता है नहीं पता है, एग्जाम्पल पूछता हूँ, सोचो. Sir, I used to work for Kingfisher, example only. Kingfisher Airlines के लिए मैं काम करता था. As a CEO only, प्रोफेशनल की तरह. साले 6 महीने की सैलरी नहीं दी है लास्ट में. अब प्रॉब्लम देखो, in the hands of employee, salary is taxable on due basis or receipt basis, whichever is earlier. Yes, sir. Yes. Yes, sir. So should they deduct TDS or not Yes, for sir. unpaid salary? Yes, sir. Yes, sir. Unpaid. Yes, sir. ड्यू बेसिस होगा ना सर? मेरे लिए ड्यू बेसिस है ना. मेरे लिए रूल क्या है? सैलरी इज टैक्सेबल इन द हैंड्स ऑफ एम्प्लॉय ऑन ड्यू बेसिस और रेसिट बेसिस, व्हिचएवर इज अर्लियर. Yes, Should sir. the employer deduct TDS without paying salary? No, sir. No, then no. हाँ, They should pay on मतलब the यहाँ time पे of payment. प्रॉब्लम है लॉ में, because section number 192 deals with TDS on salary, Yes, and section sir. number 192 says what, you know, TDS should be deducted only at the time of payment. समझ आ रहा? Yes, Yes, sir. sir. देखेंगे Yes, sir. थोड़े थोड़े सेक्शंस में we are supposed to deduct TDS only on payment basis. इंटेंशनली नहीं लिखा रहा, लिस्ट बाद में लिखाऊंगा. Yes, sir. क्यों? एक बार आपको सेक्शन नंबर पे कमांड आ जाए फिर लिखाऊंगा. Yes, Yes, sir. sir. So this is called timing of deduction of TDS. Am I clear? Yes, sir. Yes, sir. छोड़ दे, 2 लाइन छोड़ दो, यहाँ पे 2 लाइन छोड़ दो. पॉइंट नंबर 4. 4. 4. पॉइंट नंबर 4. सर, हाँ सर, when you deduct TDS, you deduct TDS at a specific rate. Yes, sir. Yes. सुनो ना Yes, सर, sir. हर सेक्शन में रेट दिया गया है. कॉन्ट्रैक्ट के लिए 1% है. 1%. हाँ 1% है. रेंट के लिए तो 10% है. 10%. प्रोफेशनल फी है तो Professional service 10% है. 10%. Yes, sir. Yes. मतलब हर सेक्शन में द रेट इज गिवन. Yes. वो पॉइंट एक लिखाऊंगा. अभी डाउट है, should I increase the rate with surcharge and cess or not? No, sir. तो sir. यहाँ पे मैंने पूरा 10% बोला है, पर मैंने सेस तो ऐड ही नहीं किया, क्योंकि प्रैक्टिकल लाइफ में सरचार्ज एंड सेस तो है. हाँ हाँ. वो तो टीडीएस पे भी है क्या? TDS पे नहीं है सर. वेरी गुड. टीडीएस पे नो सरचार्ज नो No, सेस, sir. No. unless you are making payment to a non-resident or to a foreign company. Yes. Am I clear? हाँ. वेरी Yes, गुड. तो sir. पॉइंट लिख लेते हैं आराम से. सर वेरी बेसिक पॉइंट्स. हाँ मतलब बहुत बेसिक पॉइंट्स है, और बताना बहुत इंपॉर्टेंट है. पॉइंट नंबर 4 चले. Yes, sir. Yes, sir. Yes. Point 4. TDS section provides rate. TDS section provides rate for deduction of TDS. TDS section provides rate for deduction of TDS. हर सेक्शन में रेट है except Yes. 192 and 195. एक्सेप्ट क्या होता है? 192 में सैलरी है. हर सैलरी एम्प्लॉय का इनकम सेम नहीं है ना. Yes, sir. कोई स्पेसिफिक रेट नहीं है यहाँ पे. एवरेज रेट बोल के पढ़ेंगे. 195 पेमेंट टू नॉन रेसिडेंट बोल के एक सेक्शन है, देखेंगे. फॉर योर सिलेबस इट्स नॉट देयर. नॉन रेसिडेंट Yes, sir. टैक्सेशन यू लर्न इन योर सीए फाइनल. Yes. देखेंगे. sir. पॉइंट नंबर 5. रेट्स ऑफ TDS should not be increased. By adding. should not be बोल रहा हूं मैं. should not be increased Yes, by sir. adding surcharge and education cess, health and education cess, except case 1. मतलब इनडायरेक्टली इन केसेस में आपको सरचार्ज एंड एजुकेशन सेस ऐड करना है. Add करना है. एक्सेप्शन है वो. नॉर्मल पॉइंट है नो. 10 बोले तो 10, 5 बोले तो 5, 1 बोले तो 1, 7.5 बोले तो 7.5. नो सरचार्ज नो सेस except first section number 192, that is salary, and case number 2, any payment to non-resident or foreign company, or any payment to non-resident or foreign company. Yes, sir. Yes, sir. देखेंगे.
मतलब सैलरी में मैं रेसिडेंट नॉन रेसिडेंट कुछ नहीं बोला. मतलब इमेजिन इफ आई एम वर्किंग फॉर इन्फोसिस कंपनी, व्हेन इन्फोसिस विल पे मी सैलरी, they will also deduct TDS plus surcharge plus cess. Yes, sir. Surcharge when they will deduct? When my income 50 exceeds lakh. 50 lakhs. हाँ, very good sir, 50 lakhs. Cess तो ऐसे भी ऐड करेंगे 4%. बोलो ना भाई. Yes, Yes, sir. sir. Very good. अभी ध्यान से सुनो. Shall I go forward? Yes, sir. Sir, यहाँ पे इस एग्जाम्पल में X Limited will deduct TDS and deposit in the name of Mr. A. Yes, sir. Yes. X Limited जो डिडक्टर है उनके नाम पे टैन रहेगा. टैक्स डिडक्टर अकाउंट नंबर TAN. Yes, sir. Tax deductor account Yes, sir. number, or they have to deposit the money with the TAN and then they have to tell the government, sir ये payment इन लोगों के लिए है. ये लोग कौन है? इनका पैन और इनका नाम मिस्टर ए है. हेलो. Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. सर इनका रहेगा टैन, इनका रहेगा पैन. ठीक है. Yes, sir. Yes, sir. So TDS can be deposited only by using TAN. टैक्स डिडक्टर अकाउंट नंबर. तो कंफ्यूजन ही नहीं है, नाम में ही क्लैरिटी है. वो Yes, sir. डिडक्टर का एक नंबर रहेगा. गवर्नमेंट कैसे आइडेंटिफाई करेगी कि ये डिडक्टर का पैसा है, डिडक्टी के नाम पे डिपॉजिट करना है बोल के? सो डिडक्टर विल डिडक्ट एंड दे विल फाइल अ रिटर्न विद द नेम कॉल्ड टैन. उस रिटर्न में किस किस के डिटेल्स होंगे? PAN numbers only. PAN पेई number. के. हाँ, पैन नंबर रहेगा, नाम रहेगा, कौन से सेक्शन के नीचे टीडीएस काटा है, बिल का नंबर क्या है, कितने रेट से टीडीएस काटा है, कि कौन से Yes, चालान sir. से डिपॉजिट किया, एवरी डिटेल दे विल शो. Yes. अब डाउट है, डोंट माइंड ना, मिस्टर ए पैन नंबर नहीं दे रहा अपना. ही सेज नहीं पैन नंबर नहीं देता मैं. इज पैन अ कॉन्फिडेंशियल डॉक्यूमेंट? No. Yes. ये बोल, मिस्टर ए बोल रहा है नहीं मैं नहीं देता भाई. देना क्या पड़ता. करेंगे? देना पड़ता है सर. वो उसका एक, इसको एक क्लैरिटी से पता है. इफ आई गिव पैन, वो they will लिख हो deposit the जाता. money with my name Link. and thereby government will come to know that I have earned 5 lakhs. हाँ. Yes. उसको लग रहा है गया तो गया 10 लाख की, 10 लाख 5 लाख पे Yeah. 50,000 गया तो गया. इसे बैलेंस टैक्स से तो छुटकारा है ना. लेट्स नॉट गिव पैन. Hmm. ये रुकेगा, ये मिस्टर ए रुकेगा नहीं. ये बंदा क्या करेगा, 10 लोगों को और बोलेगा अरे पैन मत दो, पैन मत दो, पैन मत दो बोल के. तो मतलब व्हेन वी वर स्टूडेंट्स ना सर, वी यूज्ड टू सी, जब टीडीएस रिटर्न डाल रहे ना, आधे लोग तो पैन नंबर ही नहीं देते थे. And we used to deposit the money with the number called PAN not available. PAN-NOT-AVLB. PAN not available. ये कोड था गवर्नमेंट का. जो लोग अगर पैन नहीं देते, आप ये पैन यूज करके डिपॉजिट कर दो बोल के. प्रॉब्लम है गवर्नमेंट यूज टू गेट द मनी, पर गवर्नमेंट को पता नहीं है किसका पैसा है. एंड ये लोग चोर साले स्मार्ट लोग रहते थे, टैक्स नहीं भरते थे, बैलेंस Yes, sir. है ना. तो गवर्नमेंट ब्रॉट अ सेक्शन ऐसे लोगों के लिए. द गवर्नमेंट स्टार्टेड, कौन सा पॉइंट है सर? पॉइंट नंबर 6. Yes, sir. Government Yes, sir. says, Yes. point number 6, that is section 206AA. गवर्नमेंट एक सेक्शन लेके आ गई. गवर्नमेंट क्या बोली पता है? इन अ केस इफ द पेई does not provide a PAN or does not provide a valid PAN, do one thing, deduct TDS as per the rate given in the section or 20%, whichever is high. Hmm. मतलब अगर 1% भी रहे तो they'll deduct 20%, 10% भी रहे तो they'll deduct 20%. Yes, sir. तो गवर्नमेंट भी अपना उल्ला सीधा कर रही है, बोल रही साले अगर पैन नहीं देंगे तो 20% TDS डिडक्ट कर दो मिनिमम. Yes. Yes, sir. चलाई. Yes, sir. Yes. या लिखो, एज पर सेक्शन 206AA, in case if payee does not provide a valid PAN, payee does not provide a valid PAN, then payee does not provide a valid PAN, then TDS should be deducted. TDS should be deducted at higher of the following. At higher of the following rates. A, rate given in the relevant section. Rate given in the relevant section, or B, at the rate of 20%, whichever is high.
और at the rate of 20% whichever is high. बोलो ना भाई, Yes, sir. Yes, sir. आगे चलो. Yes, sir. Yes, sir. चलो, अब आप लिखोगे लिस्ट ऑफ TDS sections. क्यों लिखा रहा हूं? सेक्शन नंबर बोलते ही याद आ जाना आपको. लिस्ट ऑफ TDS sections. बोलो. Yes, Yes, sir. कहाँ से है? 192 से लेके 195. 5. 195 तो आपके सिलेबस में है भी नहीं, 194E. तो इनडायरेक्टली 192, 193, 194 पढ़ना है. आपको Yes. लगेगा 3 ही सेक्शन है, हो गया खत्म. 20-25 194 में सेक्शन पूरा पूरा हेडेक पूरा 194 सीरीज है. हाँ सर. चलेंगे. Yes, sir. ये तो डिडक्शन चैप्टर हो गया, TDS चैप्टर. ये 13. या मैंने लिस्ट दे दी आपको यहाँ पे रेडीमेड. इफ यू ऑब्जर्व, आपके मटेरियल में नहीं मिलेगी, मैंने मटेरियल थोड़ा रिवाइज किया, अपडेट किया है. हेलो. Yes, sir. Yes, sir. आपको नहीं मिलेगी. यू हैव टू स्टार्ट फ्रॉम हियर. आराम से आप लिखो सेक्शन नंबर 192. TDS on salary. हाँ प्लीज लिखो ना, TDS ऑन सैलरी. लिखो प्लीज, इट विल हेल्प Section यू. 192. मैं जितना बोलता हूँ उतना लिखो. सेक्शन नंबर 192 TDS ऑन सैलरी. Yes, sir. एक मिनट रुको, इसको मैं इंपोर्ट कर लेता हूँ. 1 मिनट. हाँ, जस्ट गिव मी 1 मिनट, आई विल इंपोर्ट दिस. So how this will help me, I'll tell you. कट कर लेता हूँ यहाँ से लेके यहाँ तक, है ना? करेक्ट. कॉपी. 1 मिनट भाई. पेस्ट. Yes, sir. ठीक है. Yes, sir. एक और नेक्स्ट पेज भी है ना. ओ इतना सारा है, इसको भी क्रॉप कर लेते हैं. कॉपी. मटेरियल पूरा अपडेट किया सर परसों, और थोड़ा बैठ के, मतलब थोड़ा और फ्रेंडली बनाया मटेरियल को. ठीक है. Yes, sir. ये बाहर चल जाता ना. यस, विल स्टार्ट. नो यू कैन कीप राइटिंग. जितना बोलता हूँ उतना लिखो, आराम से लिखो. फर्स्ट वन, सेक्शन नंबर 192 TDS ऑन सैलरी. लिखा? Yes, Yes, sir. Yes, sir. सेक्शन नंबर 192 TDS ऑन सैलरी. नेक्स्ट सेक्शन 192A. ये अमेंडमेंट छोड़ दो. Yes. सेक्शन नंबर 192A TDS on withdrawal from RPF. Withdrawal. Recognized Provident Fund. Shall we? Yes, sir. Yes, sir. Next, section of 193 TDS on interest on securities. Securities. TDS on interest on securities. TDS on interest on securities. अब ध्यान से सुनो, इंटरेस्ट के ऊपर एक और सेक्शन है. ऑब्जर्व करो, मैं हाईलाइट कर रहा हूँ. ये रहा. Other than securities. हाँ, तो इन दोनों को लिंक करके लिखना है. 193 एंड 194 है, दोनों भी इंटरेस्ट है. और one is interest on securities, the other is interest on other than securities. Other than securities. Next section number 194A. पूरा capital है, हाँ, no bracket, nothing. Yes. Section number 194 capital. TDS on interest other than securities. Done? Yes, sir. Okay. अब ध्यान से देखो, ये इस बार आपको जो सेक्शन पूछेगा ना, ये पूछेगा मेरे हिसाब से. If you remember, परसों तक 2019-20 तक dividend from Indian companies was exempt from tax. Exempt. Yes, sir. Section 1034. Why Yes, sir. exempt? Because the company declaring Company used to dividend, pay. हाँ, used to pay dividend distribution tax. Yes, sir. DDT. Yes, अगर sir. मैं कंपनी हूँ, when I'm declaring dividend to my shareholder, I used to pay DDT. Yes, Thereby, sir. the hands of shareholder was exempt. Yes, sir. अभी क्या हो गया? Exemption they have removed. Yes. जब exemption remove किया तो TDS section लाएगा ना? Yes, sir. Yes, sir. They brought a section called 194. Yes, sir. Yes, sir. Section number, next section. Section number 194. TDS. Section number 194. TDS on dividend. TDS on dividend. Obviously applicable only to Indian companies, huh? Because foreign company आज भी TDS नहीं डिडक्ट करती है. देखेंगे वाइस ओवर के. Shall I go?
Yes, sir. Next Yes, two sir. sections are what you know, ये 194B and 194BB. Yes. ये दोनों सेक्शन विनिंग्स के रिलेटेड है. इसे Yes. इंटरेस्ट के लिए सर पूरा सेक्शन नंबर याद हो जाना है आज. बिफोर वी क्लोज Yes, sir. 2 hours क्लास टुडे वी हैव टू कंप्लीट सेक्शन नंबर याद हो जाना है. बस Yes. एग्जाम में पूछता 4 मार्क्स ही आईपीसीसी के लिए. मोस्टली बहुत इजी रहते क्वेश्चंस, पर सेक्शन नंबर याद रखोगे तो इजी. 192 is salary, 192 is withdrawal from RPF. Withdrawal of RPF. हाँ, अगर 5 साल के बाद विड्रॉ किया तो एग्जाम है, 5 साल के पहले विड्रॉ किया तो टैक्सेबल है, याद है ना? हाँ Yes, सर. Yes, sir. sir. सैलरी चैप्टर में पढ़े. 193, 194A सेट सेक्शंस. Interest. इंटरेस्ट ऑन Yes, सिक्योरिटीज, interest on इंटरेस्ट ऑन security. अदर देन Interest on सिक्योरिटीज. other than security. वेरी गुड. इसके बाद हम लोग जनरली 194B भी पढ़ा लेते थे, पर एक सेक्शन आ गया बीच में 194. 4. Yes, पहले sir. से था, पर प्रॉब्लम है आंसर वाज एग्जाम देयरबाय नो टीडीएस. अभी क्या हुआ? इट इज नो मोर एग्जाम ना, देयरबाय यू हैव टू स्टार्ट डिडक्टिंग sir. टीडीएस. दैट्स कॉल्ड Yes, sir. टीडीएस ऑन डिविडेंड फ्रॉम इंडियन कंपनीज. Yes, sir. Yes, sir. You can complete the sentence fully. TDS on dividend from Indian companies. Next section 194B and 194. पहले B लिख लो. 194B TDS on winning from lottery or crossword puzzles. Yes. पहले B लिखो. B 194B TDS on winning from lottery or crossword puzzles, etc. Next is 194BB TDS on interest. TDS on winnings from horse races. Horse races. TDS on winnings from horse races और racehorse. दोनों सेक्शन में रेट एक है, सब सेम है, दोनों को मर्ज कर सकते, पर गवर्नमेंट क्यों नहीं मर्ज करती पता है? एवरीथिंग इज सेम. गवर्नमेंट को आइडिया पता चलना चाहिए कि रेस हॉर्सेस से कितना विनिंग आ रहा है लोगों को. Yes, sir. Only for that they have done it, otherwise they could have merged it. Next section 194C. Contract. 194C TDS on payment to contractors or subcontractors. TDS on payment to contractors or subcontractors. 190. अच्छा इंपॉर्टेंट है. हाँ इंपॉर्टेंट है. 194C TDS on payment to contractors or subcontractors. एक बार रिवाइज करते हैं. 192 TDS on salary. TDS. Yes, sir. 192A Withdrawal of Withdrawal of from RPF. RPF. 193 and 194A क्या है? Interest on Interest on securities. and interest On other than other than securities. securities. 194 Interest on dividend. 194 interest on dividend. डिविडेंड के ऊपर है ना. Yes, नेक्स्ट sir. सेक्शन इज व्हाट यू नो 190 For B. B. B हो गया क्या? नहीं, B नहीं हुआ. 194B and 194BB. BB. Yes, sir. B 194 आके जनरल winning. सेक्शन है, BB आके स्पेसिफिक सेक्शन है. Specific. Yes, sir. Yes. B Race आके horse. एनी विनिंग्स, BB आके विनिंग फ्रॉम Race Horses. मैं क्लियर. 194C आके C मतलब कॉन्ट्रैक्टर्स बोल के C. याद रख सकते हैं. पेमेंट टू कॉन्ट्रैक्टर्स और सब कॉन्ट्रैक्टर्स. Yes, Yes, sir. sir. जाएंगे. Yes, Yes, sir. sir. नेक्स्ट सेक्शन 194DA. 194DA कहाँ है? यहाँ पे है. TDS on receipts from life insurance policy, or you can write TDS on payments under life insurance policy. यहाँ पे TDS कौन डिडक्ट करेगा? इश्यूअर ऑफ पॉलिसी. Yes. किसके लिए डिडक्ट करेगा? फॉर द पर्सन हु इज होल्डिंग द पॉलिसी. Yes. अगर आपको याद है यहाँ पे लिख लो, यहाँ पे प्लस रेड विथ सेक्शन 10 सबसेक्शन 10D. रेड विथ सेक्शन 10 सबसेक्शन 10D. अगर आपको पैसा याद है तो अभी नहीं डिस्कस कर रहा. से 99% आंसर इज एग्जम्प्ट. Yes, sir. And when Exempt. something is exempt, Yes. no point of deducting TDS. लिखो मत, सुनो अभी. लिखो मत, सुनो. 194D, 194G, 194H. All the three deals with some commission only. तीनों भी कमीशन के सेक्शन है. 194D, 194G, 194H. पर क्या है? 194H is a common section. D and G are specific section. 194D आके if you are working as an insurance agent, you will get commission Yes, sir. for soliciting Yes, sir. insurance business. Yes, sir. That is 194D. If you are in the business of sale of lottery बेचते हो आप, समझाता हूँ, सेक्शन में आऊंगा तो सब समझाऊंगा. Then 194G,
Any other commission, any other brokerage, then 194H. Yes, Yes, sir. sir. EGH. Yes, sir. Shall we write? Yes, Yes, sir. sir. You can answer. 194D. TDS on insurance commission. TDS on insurance commission. TDS on insurance commission. Next. 194G. TDS on commission. TDS on commission for sale or distribution of lottery. TDS on commission for sale or distribution of lottery. जाएंगे Yes, Yes, sir. sir. सर लॉटरी स्टेट गवर्नमेंट ट्रांजैक्शन आपको पता रहना चाहिए, इसलिए तेलंगाना में, आंध्र प्रदेश में आपको लॉटरी दिखता ही नहीं। आप महाराष्ट्र गोवा। जाओ, असम जाओ, Yes, गोवा sir. जाओ, आपको लॉटरी दिखेगा वहां पे। Yes, sir. जुआ है ना भाई, लोग मतलब स्टेट गवर्नमेंट नहीं परमिशन देती, थोड़े थोड़े स्टेट वहां पे। सिक्किम लॉटरी रहता है। सिक्किम सुपर लूटो बहुत फेमस था वो। Shall we move? Yes, Yes, sir. sir. हाँ एक मिनट मेरे को इरेज करने दो, बार बार इरेज करना पड़ रहा है। सर नेक्स्ट सेक्शन इफ यू ऑब्जर्व, नेक्स्ट सेक्शन इज 194I and 194IB, both Sir, are H- for rent only। H नहीं लिखे सर, हाँ जी, H नहीं लिखे सर। ओ H नहीं लिखे, सॉरी माय मिस्टेक। सेक्शन 194H, TDS Yes, on sir. commission or brokerage। TDS on any other. हाँ एनी अदर ऑब्वियसली। TDS on commission or brokerage, ये जनरल सेक्शन है। DNG Yes, स्पेसिफिक sir. सेक्शन है। चैप्टर इजी, आप टेंशन मत लो। सी Yes, मैं sir. कैसे पढ़ाता हूँ बोलते हो, बहुत नॉलेज के लिए पढ़ा देता हूँ बोल के आपको हार्ड लगता है। एग्जाम परस्पेक्टिव पढ़ाना है तो 2 घंटे का चैप्टर, वो भी उसमें भी 2 बार रिवीजन करा सकता हूँ। हाँ, तो sir. 5 ही पॉइंट पूछता है एग्जाम में, एप्लीकेबिलिटी, रेट ऑफ टीडीएस, Yes, व्हेन sir. नो टीडीएस, टाइमिंग ऑफ डिडक्शन एंड एनी स्पेशल केसेस इफ एनी। बस उससे ज्यादा पूछता नहीं आईपीसीसी में। Yes, sir. एंड मोस्ट ऑफ द टाइम द डिडक्टर इज रेसिडेंट पर्सन ओनली, मोस्ट ऑफ द टाइम, Yes. एंड डिडक्ट इज एनी पर्सन। तो बट्टी Yes. क्या माना रहता है, रेट ऑफ टैक्स माना रहता है बट्टी। टाइमिंग ऑफ माना डिडक्शन तो मैं रहता है, आपको बोल दिया, जनरली एट द टाइम ऑफ पेमेंट और क्रेडिट व्हिचएवर इज अर्लियर। Payment. Yes. स्पेशल केसेस याद करने पड़ेंगे एग्जाम में, पढ़ाऊंगा, Yes, डोंट sir. वरी। नेक्स्ट, शैल वी गो टू द नेक्स्ट सेक्शन। Yes, sir. अभी Yes, एक बार sir. क्या क्या सेक्शन हम लोग पढ़े, फिर से रिवाइज करते हैं। 192 सैलरी, 192 salary, TDS on salary. Salary. Withdrawal of Withdrawal RPF. from Withdrawal of RPF, RPF. RPF। नेक्स्ट 194B, 190. 193. 193 एंड 194A। 4A. Yes, sir. Yes, ये sir. दोनों आके क्या है, इंटरेस्ट ऑन Interest on सिक्योरिटीज, security, अदर other than सिक्योरिटीज। security. Securities. 194 TDS on dividend, Dividend. Dividend. Yes, received sir. from Indian company। 194B. Yes, sir. Yes, sir. 194B and 194BB winnings, Winnings Yes, and normal horse winnings race. 194B, specific B. winnings 194BB। One and very. Odds. फिर आगे 194C, C. Yes, सी sir. आके पेमेंट टू Contractors. कॉन्ट्रैक्टर्स और Contractors, सबकॉन्ट्रैक्टर्स। Subcontract. खादिर समझ में आ रहा है आपको? Yes, sir. Yes, sir. आप पहली बार कोचिंग दे इसलिए। हाँ sir. पेमेंट टू कॉन्ट्रैक्टर्स और सबकॉन्ट्रैक्टर्स। Subcontractor. नेक्स्ट 194DA, 194DA. receipts from life insurance policy, Yes, sir. Yes, sir. if it is not exempt under section 1010D, common sense। Yes, Yes, sir. Yes, sir. sir. 194D, G and H, all And three are H, for commission। Commissions. Commissions. Yes, sir. D आके insurance Insurance commission, commission. G आके lottery commission, Lottery Lottery commission. H आके Any any other commission commission or or Normal. brokerage. Any other. Yes, sir. सुपर। जाएंगे आगे। Yes, Yes, sir. sir. नेक्स्ट, रेंट के लिए 2 सेक्शन है, 194I and 194IB। IB. देखो ये आईबी नया सेक्शन है। टीडीएस ऑन रेंटल पेमेंट्स, टीडीएस ऑन रेंटल पेमेंट्स 194I, 194I टीडीएस ऑन रेंट। नेक्स्ट 194IB, yeah, TDS on rent paid by individual HF 194IB, TDS on rent paid by individual HF। क्वेश्चन है 2 सेक्शन क्यों है ना? एक बोलता कंपनी का हूँ, होगा। जस्ट कैजुअली बोलता हूँ। Indian. Land and building. जनरली प्रॉब्लम क्या होता है, गवर्नमेंट सेज if a person deducting TDS or a person who is supposed to deduct TDS is an individual or HF whose books of accounts are not subject to audit, there is no need to deduct TDS। अब मैं इंडिविजुअल हूँ, बिजनेस तो कर रहा हूँ पर ऑडिटेबल बिजनेस नहीं है मेरा, मतलब इतना कुछ धूमधाम से टर्नओवर नहीं हो रहा मेरा, गरीब आदमी मैं,
तो गवर्नमेंट से जब गरीब आदमी किसी को पेमेंट करेगा, एक गरीब से दूसरा गरीब कितना कमा लेगा? लेमैन वर्शन, मैं खुद ही एक गरीब आदमी, अगर आप मुझसे डील करोगे तो मुझसे कितना कमा लोगे भाई आप? तो गवर्नमेंट से बॉस यू नीड नॉट डिडक्ट टीडीएस, लेमैन वर्शन। पर ऑब्जर्व किया गया थोड़े थोड़े लोग, दो दे आर नॉट सब्जेक्ट टू ऑडिट, hefty रेंट्स दे आर पेइंग। अभी एग्जांपल अपनी कोचिंग सेंटर है, मे भी अच्छा चलता है नहीं चलता है छोड़ो, रेंट तो दबा के भर रहे ना कमर्शियल कैंपस का। Yes, sir. तो गवर्नमेंट सेड इंडिविजुअल और HUF whose books are not supposed to get audited but they are paying rent more than 50,000 in a month, Okay. आप टीडीएस डिडक्ट करो। मतलब आप तो गरीब हो पर आपके कारण कोई दूसरा अमीर बन रहा है रेंट कमा कमा के, आप महीने में 50,000 से ज्यादा रेंट भर रहे हैं तो टीडीएस डिडक्ट करो आप। समझ में आ रहा है? Yes, यस sir. सर। ठीक है, इसलिए दो सेक्शन है बोल के बोल रहा हूँ स्टोरी। नया सेक्शन है 194 IB, नया मतलब इतना कुछ नया नहीं है, 2 साल हो गए आके। So 194 IB is nothing but when rent is paid by individual or HUF, अच्छा। Yes, and sir. that is called when the monthly rent is exceeding 50,000 rupees। ठीक है, Yes, sir. यस सर। जाऊँ आगे Yes, sir. नेक्स्ट। वो अभी अभी सेक्शन नंबर बोल रहा हूँ, वो अंदर का कंटेंट नहीं बोल रहा हूँ। 192 Salary. 192A। Okay. हाँ बोलो, खादिर आप बोलोगे? हाँ sir. हाँ बोलो। 192 salary. हाँ 192. 193 is 192A RPF, RPF. RPF. 193 193 Rest on Interest security. on security. interest on securities. या 194A 194A interest other than security. वेरी गुड। 194 Debentures. Interest Dividend. on Dividend. dividend. dividend from Indian company, very good। 194B and 194BB, Winnings. Winnings. first one is winning, second is winning from horse races। Horses. Horses. नेक्स्ट B हो गया। 194C Contractors and Contractors. subcontractors. payment to contractor। D, G and H are all commission। Commissions. D is insurance commission, G is G lottery is commission, lottery. Yes, any other sir. commission H is बोल general रहा है? commission. Any other commission? Yes, sir. रेंट आके दो सेक्शन 194 I. I and 194 IB। 190 IB. बीच में Yes, आई sir. है, यहाँ पे है देखो, यहाँ पे है आई है, यहाँ पे है देखो। Yes, sir. हाँ, क्यों आया वैसे मैं बोलता हूँ, अमेंडमेंट एक दिन के बाद Purchase of immovable आया। property. हाँ जाएंगे, shall we move? Yes, sir. Yes, sir. नेक्स्ट 194J। अब इसमें मैं ध्यान से लिखाता हूँ, लिखो, हाँ, चीज मैं लिखाता हूँ आप मत लिखो। टीडीएस ऑन हेमंत 194J Yes, sir. ऑन ABCDE 5 पॉइंट्स है। ए फी फॉर टेक्निकल सर्विसेज FTS, फी फॉर टेक्निकल सर्विसेज सर क्या है 194 जे लिख जे के जे 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 TDS on TDS on ABCDE। A Technical services. A fee for technical services, yes, sir. fee for professional services. services, FPS। Next royalty, Royalty, non-compete fee non-compete fee, and payment to directors, not in the nature of salary। You can salary. write payment to directors। अयो 5 अलग तरह के पेमेंट से एक ही सेक्शन में घुसेड़ दिए लोग। Sir, D. Yes, sir. Fee for professional Payment to services, fee for technical services, royalty, non-compete fee, making payment not to compete with us। मॉर्निंग बोला था मैं, Yes, Yes, sir. sir. एक ही फ्लोर में हम 5 लाख। दोनों कोचिंग कर रहे हैं, मैं तेरे को बोला ले 5 लाख रुपए चल भग यहाँ से, याद है? Yes, sir. Non-compete fee and last one payment to directors। Directors. अभी कॉमन सेंस है, when you are making payment to directors, hello, and if the Yes, payment sir. to directors is in the nature of salary, 192 will apply। A director can be employee also ना? Yes, Yes, sir. sir. ओके 194J हो गया। कुछ अमेंडमेंट आएगा तो देखेंगे। हेलो, 94 कुछ IA. अमेंडमेंट आया देखेंगे। Okay, sir. 196 छोड़ दो, नॉट रिक्वायर्ड, नॉट रिक्वायर्ड। 196 छोड़ दो। सर आई इमूवेबल प्रॉपर्टी के लिए 2 सेक्शंस हैं। Yes, sir. 196 छोड़ दो। इमूवेबल प्रॉपर्टी के लिए 2 सेक्शन, इफ यू ऑब्जर्व हियर, इमूवेबल LA प्रॉपर्टी, compulsory. इमूवेबल प्रॉपर्टी। Yes, sir. 194 LA, 194 IA। Yes, LA sir. आके कंपल्सरी एक्विजिशन केसेस Yes. और IA आके जनरल केसेस where the consideration for the purchase is more than 50 lakhs। Yes, sir. Sorry, greater than or equal to 50 lakhs, 50 या उससे ज्यादा। Yes, हाँ। sir. हाँ चलो लिखो 194 LA। पेमेंट
payment towards purchase of immobile property by compulsory acquisition. Payment towards purchase of immobile property by compulsory acquisition. Payment towards purchase of immobile property by way of compulsory acquisition. वो 194 LA है. 194 IA क्या है? पेमेंट फॉर परचेज ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, बस उतना ही. तो वो याद रखना है कंपल्सरी एक्विजिशन केस है, अदर देन कंपल्सरी एक्विजिशन केस है. और आइए अरे बोलो ना भाई. Yes, sir. Yes, sir. तो पेमेंट फॉर परचेज ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी इज 194 IA. Yes. Yes, sir. देख लो भाई आराम से. जाऊं? Yes, sir. Yes, sir. नेक्स्ट सेक्शन 194E. नहीं सीरीज ब्रेक हो जा रहा है ना. ई क्यों लेके आ रहा हूँ, छोड़ो अभी नहीं बोलता हूँ ई को, एक को लास्ट में लिखेंगे. नेक्स्ट M, sir. 194 IC. I see. या IC ये रहा, हाइलाइटर ये रहा. Point 194 IC दिखा. यस सर. Yes, sir. आज तो मॉर्निंग जॉइंट डेवलपमेंट एग्रीमेंट पढ़े हम लोग. हाँ सर. Yes, sir. वो केस है ये. पेमेंट सुबह मॉर्निंग के एग्जाम्पल पे आते 10 लाख रुपए पे किया प्लस 5 Yes, लाख. यस सर. 5 5 लाख. फ्लैट. 10 लाख पे टीडीएस है ये. 5 लाख पे टीडीएस कैसे डिडक्ट करोगे, नहीं कर पाओगे. इसे 10 लाख पे टीडीएस डिडक्ट करो. पेमेंट अंडर जॉइंट डेवलपमेंट एग्रीमेंट. पेमेंट अंडर जॉइंट डेवलपमेंट एग्रीमेंट मतलब इनडायरेक्टली डेवलपर पेमेंट कर रहा ट्रांसफर ऑफ लैंड को. याद है? यस सर. Yes, sir. नॉट दैट इंपॉर्टेंट बट है तो पढ़ना है बस. नेक्स्ट शैल वी गो. Yes, sir. Yes, sir. नेक्स्ट नेक्स्ट 194M. 194M ये लास्ट के 3 सेक्शन नए हैं सर. Yes, sir. M and मतलब आपने अगर पहले भी कोचिंग ली हुई है तो मोस्टली चांसेस आपने नहीं पढ़ा होगा ये. sir पढ़े थे सर, आप दिखाए थे. हाँ प्रॉब्लम है कोविड में बहुत सारे लोग कोचिंग नहीं लिए ना सर, इसलिए. हाँ. फाइनेंस एक्ट 2019-20 में 2 और सेक्शंस है अमेंडमेंट्स. ठीक है देखेंगे. क्या लिखा मैंने 194M. M. M. TDS on certain amounts paid by individual or HUF. Amount exceeding 50 lakhs. TDS on certain amounts paid by individual or HUF. TDS on certain amounts paid by individual or HUF. 194M. Shall we? Yes, sir. नेक्स्ट. सर ये सेक्शन क्यों है, वही ड्रामा है सर. ये लोग क्या बोले थे लॉ में, एक इंडिविजुअल और HUF जिसकी बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑडिट नहीं होती है, Audit. नो नीड टू डिडक्ट TDS. Yes, sir. फिर उनको लगने लगा अरे यार दे आर आल्सो मेकिंग लॉट ऑफ पेमेंट, बुक्स ऑडिट नहीं हुए तो क्या हुआ, पेमेंट तो अच्छा खासा कर रहे हैं. दे ब्रॉट दिस सेक्शन. Yes, समझ में sir. रहा है? यस सर. Yes, sir. हाँ ठीक है. सो 194M एक स्पेशल सेक्शन है. मतलब लॉ अपना रिलैक्सेशन ही निकालने के लिए सेक्शन लेके आई. उससे अच्छा तो बोलते हैं कि सबको ही TDS डिडक्ट करो, हो जाता था काम, ये सेक्शन ही नहीं होता. Yes, sir. ठीक है. 194M TDS on certain payments made by individual or HUF. M. Yes, Shall we? yes, Next. sir. 194N TDS on cash withdrawal. 2 करोड़ से ज्यादा 1 करोड़ से ज्यादा कैश विड्रॉ करोगे तो TDS on cash withdrawal. वाह, अपने बैंक से अपने पैसे निकालने के लिए भी TDS है. जस्ट इमेजिन करो. हाँ सर. गवर्नमेंट को क्या प्रॉब्लम है, इतना पैसा लिक्विड कैश करोगे क्या? सी प्रॉब्लम है. Yes, sir. TDS क्यों डिडक्ट कर रहे हैं सर, मेरे को नहीं समझ में आता. इलॉजिकल है. हाँ Whether सर. when I withdraw the money from my account, whether I'm earning. No. नो सर थिंग. If you want to trace the money, you could have asked the bankers to file a report. कौन Yes, sir. कौन इस साल में 1 करोड़ से ज्यादा रुपए विड्रॉ किया, हाँ. and then you can ask the person, भाई इतना पैसे का किया क्या आप बोल के. यस सर. TDS डिडक्ट करने से गवर्नमेंट क्या कर रही है, अपना लालचीपना दिखा रही है, वसु कुछ भी नहीं. दो द सेशन इज रिकॉर्डेड, इज ओके. Yes, लॉजिकली sir. देखो, अगर मैं अपने बैंक अकाउंट से 5 करोड़ रुपए कैश निकाल रहा, इनकम हो रही क्या मेरी? नहीं Oh, तो sir. TDS डिडक्ट करो at the rate of 1% और 2%. Yes. सर. उल्टा बैंक ही पूछते सर, 2 लाख 3 लाख से ऊपर निकाले तो वही पूछते क्या करना है बोलकर. मैं तो पूछता तेरे बाप का, तेरा जाता क्या, मेरा पैसा मेरी मर्जी. नहीं सर, एक्चुअली बैंक भी पूछते सर. हाँ पूछे तो पूछो ना भाई. सी व्हाट द गवर्नमेंट शुड हैव डन, दे शुड हैव आस्क्ड द बैंकर्स टू फाइल अ रिपोर्ट. क्रेडिट कार्ड से इतना क्या खर्च हो रहा, आप लिस्ट दो बोल के. दे कुड हैव मेक अ कंपाइलेशन एंड देन दे कुड हैव क्वेश्चन एवरीवन सेइंग दैट इतना पैसा विड्रॉ किया ना करंट अकाउंट से, क्या किया बोलो.
Yes, ये sir. पागल लोग क्या किया, पैसा विड्रॉ करे टीडीएस डाल दो। पहले तो अच्छा था, 1 करोड़ के ऊपर टीडीएस था, अब तो पूरे पे टीडीएस है। अभी भी 1 Amendment आ करोड़ गया। पे है शायद ना? नहीं अच्छा अभी अमेंडमेंट आ नहीं। गया, अमेंडमेंट आया, बताता हूँ, डोंट वरी। नेक्स्ट सेक्शन 1 करोड़ 194 ओ, ईयरली है ना सर? ये ली 194 ओ, ये ओ माय गॉड सेक्शन है ई कॉमर्स वालों के लिए। 194 ओ, TDS on payment to e-commerce participants. TDS on payment made to e-commerce participants. ये सेक्शन एकदम नया है, introduced by Finance Act 2020 if you observe. Important है, most important है. Don't worry, once we learn the chapter then we'll see what is important. सुनो, Amazon से अब आप सामान खरीदते हो, Yes, sir. यस सर Amazon तो मीडिएटर है ना, Yes, sir. सेलर और कोई है, बायर आप लोग हो। इमेजिन मैं Amazon हूँ, हेलो, Yes, sir. यस सर Amazon के नीचे बहुत सारे सेलर्स है, बहुत सारे बायर्स है। Yes, sir. जब आप मुझे पेमेंट करते हो, आई मेक द पेमेंट टू द सेलर, Seller. Yes, sir. so indirectly seller is earning because of Amazon platform. Yes, यस sir. सर That in that case गवर्नमेंट, अभी परसों तक टीडीएस नहीं था, गवर्नमेंट सेज नहीं भाई अब से आप टीडीएस डिडक्ट करना स्टार्ट करो। If the sales are made through e-commerce participants, मतलब using an e-commerce operator, at the time of making payment to e-commerce participant you have to deduct TDS. That is section number 194O. ओ Shall I? यस ये तो सर जीएसटी का last- आरसीएम हो गया। हाँ इंडायरेक्टली आरसीएम हो गया, जीएसटी का। लिखो नेक्स्ट 194E, ई या पेमेंट टू नॉन रेसिडेंट स्पोर्ट्स पर्सन। नॉन रेसिडेंट है, देखो पेमेंट टू नॉन रेसिडेंट स्पोर्ट्स पर्सन, एंटरप्रेन्योर एंटरप्रेन्योर, पेमेंट टू नॉन रेसिडेंट स्पोर्ट्स पर्सन, एंटरप्रेन्योर नहीं रे बाबा, एंटरटेनर, तू भी ना, तेरा वर्ड सुन के मैं भी वही वर्ड बोल रहा हूँ। TDS on payment to non-resident sports person, entertainer and sports association and sports association. बोलो ना भाई। यस यस सर या सी जनरली ये सेक्शन पूछना नहीं चाहिए आईपीसीसी में, नॉन रेसिडेंट का सेक्शन है ये, पर एक बार एग्जाम में पूछ लिया तो आई इंक्लूडेड इन द मटेरियल नाउ, व्हाई टू टेक चांस, फिर से पूछ ले तो नो, आराम से। एक बार आप सेक्शन नंबर पढ़ के रखो प्लीज, एक बार आप पढ़ो ना सेक्शन नंबर, यू रीड वन टाइम प्लीज। अब सुनते हैं एक बार आराम से, नो हरी। फर्स्ट वन इज 192, यस सर Yes, sir. नेक्स्ट 192, हाँ एक मिनट, हाँ 1 मिनट, ये दोनों सेट सेक्शन है, 192 एंड 192A, ये दोनों सेट है यस सर बिकॉज लॉजिकली दोनों की सैलरी है, एक सैलरी है, एक है एक आरपीएफ। विड्रॉल Yes, sir. ओके 193 194A दोनों भी इंटरेस्ट है, बोलो भाई। Yes, sir. यस सर बीच में आ गया डिविडेंड सेक्शन, Yes, sir. 94 या नेक्स्ट 194B और 194BB, BB. विनिंग याद है, Winnings के। दोनों भी sir. विनिंग के सेक्शन है, यस सर बी हो Yes, गया। sir. फिर है 194C, कॉन्ट्रैक्टर Contract, पेमेंट टू subcontract. कॉन्ट्रैक्टर और सब कॉन्ट्रैक्टर्स। फिर नेक्स्ट सेक्शन है 194B, 194 बी 194 GAJ, G एंड 194H कमीशन के सेक्शन है, यस सर EGH. Yes, sir. EGH कमीशन के सेक्शन। नेक्स्ट है 194DA, रिसीट्स फ्रॉम लाइफ इंश्योरेंस Life पॉलिसी, insurance. लाइफ Yes, इंश्योरेंस sir. पॉलिसी याद हो रहा। Yes, sir. यस फिर सर क्या सेक्शन है 194J, J. जे P for professional हाँ, I, services, P for sir. technical services, I, royalty I, no, आई भूल गया क्या, हाँ आई हाँ, I. 194J ठीक है, 194J फी फॉर प्रोफेशनल सर्विसेज, फी फॉर टेक्निकल सर्विसेज, रॉयल्टी, नॉन कॉपी फी, पेमेंट टू डायरेक्टर्स। 5 अलग नमूना का पेमेंट ग्रुप कर दिया वो एक में, हाँ सर अरे बोलो ना भाई। Yes, यस sir. सर 194J हो गया, नेक्स्ट 194I I. एंड 194IB, I. यस सर IB आई आके रेंटल पेमेंट, IB ओके Rental, पेमेंट बाय yes. इंडिविजुअल्स रिच ऑफ, यस जो 50,000 से ज्यादा रेंट पे करते हैं छोटे होते हुए भी, यस Yes, सर sir. ओके 194 है IB। फिर 194 LA IA. 194 IA आई नहीं ना, आइए बोल दो क्या,
194 LA and 194 IA. Do you agree? IA. Yes, sir. दोनों भी आके पेमेंट फॉर परचेज ऑफ Purchase of property. immovable property. One is compulsory acquisition case, other is other Compulsory. than compulsory acquisition case. Compulsory. Yes, sir. Yes, sir. दोनों में एग्रीकल्चर लैंड नहीं कवर है, ध्यान से याद रखना, वो Yes, सेक्शन sir. आऊंगा जब बोलूंगा। आई हो गया Yes, आई sir. भी। नेक्स्ट 194 For IC IC. जॉइंट डेवलपमेंट Joint एग्रीमेंट Development Agreement. Yes, sir. JDA Yes, sir. जॉइंट डेवलपमेंट एग्रीमेंट आई सीरीज हो गई। फिर क्या है? Yes, sir. M. M. हाँ ये सब स्पेशल सेक्शन है। 194 M है, M. N है, O. 194 O है, 194 E E है। है। E. कुछ Yes, मिस sir. किया क्या देखो? नहीं सर। नहीं, या sir. M किसके लिए है? Certain payments made by individual which Individual. whose books are not subject to audit. Yes, sir. और 50 लाख से ज्यादा पेमेंट कर रहे हैं, वो बताऊंगा सेक्शन में। 194 N आके withdrawal Withdrawal. of cash from your own Yes, bank sir. accounts. Yes, sir. 194 O जो इस साल उतरा है, 194 O जो इस साल उतरा है, it is all Yes, about sir. what sir? E-commerce. E-commerce participant. पार्टिसिपेंट को पेमेंट कर रहा है ई-कॉमर्स ऑपरेटर। Operator. मतलब लिटरली Amazon और Flipkart is making payment to the sellers. Seller. Yes, sir. 194 E आके पेमेंट टू कॉन्ट्रैक्टर्स, Payment. पेमेंट टू Non-resident non-resident sportsman. स्पोर्ट्स पर्सन, Sportsman, एंटरटेनर entertainer, और एसोसिएशन, sports. Associate. स्पोर्ट्स एसोसिएशन। Yes, sir. sir. तो इतने सेक्शंस तो पढ़ने हैं अपने को मिनिमम। चलेंगे? Yes, sir. Yes, sir. हाँ होने दो। सी इतना कुछ हार्ड नहीं है सर, एवरी सेक्शन इज इंडिपेंडेंट। आप समझ के चलो, थोड़े थोड़े सेक्शन बहुत ही इजी है, थोड़े थोड़े सेक्शन थोड़े कॉम्प्लिकेट ज्यादा है, देखेंगे नॉट वन बाय वन, विल सी। Yes. शैल वी स्टार्ट विद वन सेक्शन? Yeah. Yes. Yes, sir. ये आपका इंट्रोडक्शन खत्म होता है सर। हम लोग काम करेंगे, इजी थिंग यहाँ पे लिख लेंगे सर, जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मतलब एकदम हार्ड पॉइंट है वो मटेरियल में डिफर कर लेंगे। दिस इज लाइक एग्जामिनेशन बुक, एग्जाम में इतना पढ़ लोगे तो बस है। Okay, sir. Shall we? Sir, most important section टिक करा देना था ना सर? अभी नहीं, लास्ट में करा था। Okay. तो आपको इंपॉर्टेंट कब समझ में आएगा? जब मैं टीच करूंगा तब मैं बताता हूँ। नेक्स्ट सेक्शन नंबर 192 TDS on salary. TDS on salary. सी हर चीज का एक पढ़ने का फॉर्मेट रहता है, वो फॉर्मेट एक बार समझ जाएंगे। यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट कौन है बताए? पेयर कौन है? पेयर। नेक्स्ट है पेई, पेयर पेई। TDS on what? Rate. इसके ऊपर TDS, रेट ऑफ TDS है ना भाई? Yes, sir. फिफ्थ वन है टाइमिंग ऑफ डिडक्शन ऑफ TDS। टाइमिंग ऑफ डिडक्शन ऑफ TDS। Shall we? Yes, sir. Yes, sir. कॉपी नहीं कर सकते क्या? कर सकते सर। नहीं, कॉपी करके रख लेता हूँ, सब में पेस्ट ही करना है ना। फर्स्ट पेयर कौन है बताए यहाँ पे? एम्प्लॉयर। Yes, sir. See, when I say employer, I never said should be resident or non-resident employer. It may be any employer. Yes, sir. Yes, sir. मतलब ये सेक्शन ग्लोबली एप्लीकेबल है, ध्यान से। Yes, Yes, sir. sir. अगर आप फॉरेन में काम करते हो पर आपकी सैलरी इंडिया में टैक्स होती है बिकॉज ऑफ डिप्लॉयमेंट इन इंडिया, then that foreign employer should deduct TDS and deposit to government of India. ये सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है, बिकॉज सेक्शन सिंपली सेज एम्प्लॉयर। वो इंडियन Yes, एम्प्लॉयर sir. भी रह सकता है, वो फॉरेन एम्प्लॉयर भी रह सकता Foreign है। employee. सर सैलरी इंडिया में कब टैक्स होती है? व्हेन द सर्विस आर रेंडर्ड इन इंडिया Yes. और रिसीव्ड इन इंडिया। याद है ना? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. इंडियन इनकम, फॉरेन इनकम भूल गए क्या? Yes, sir. याद है सर। भूल गए हो तो याद हाँ है भूल सर। गए करते याद। हैं। Yes, sir. यही कौन रहना है? पे शुड बी एम्प्लॉई। Employee. एम्प्लॉई जनरल इंडिविजुअल ओनली। एम्प्लॉयर कोई भी रह सकता है, एम्प्लॉय इंडिविजुअल। Yes, Yes, sir. sir. TDS on what? TDS is on Salary. payment of salary. Do you agree? TDS is on payment of salary. Yes, sir. चले? Yes, sir. Yes, यहाँ पे sir. पॉइंट एक पॉइंट बोल देता हूँ। नोट डाउन, पेमेंट ऑफ सैलरी सुनो आराम से। प्लस और माइनस हाउस प्रॉपर्टी प्लस अदर इनकम्स, प्लस अदर इनकम। सर ऐसे क्या बोल रहे हैं सर?
सुनना है ध्यान से, गवर्नमेंट से अगर एक एम्प्लॉई अपनी एडिशनल सोर्स ऑफ इनकम एम्प्लॉयर को डिक्लेयर करता है, then employers is supposed to consider that income also and deduct TDS. ऐसे क्यों बताता हूँ। मैं इन्फोसिस में काम कर रहा हूँ, मेरी सैलरी 40 लाख है, एग्जाम्पल यार, तो 40 लाख पे वो लोग TDS डिडक्ट करेंगे। और ऑल्सो आई एम अर्निंग 4 लाख रेंटल इनकम फ्रॉम मियापुर प्रॉपर्टी। अब मेरा प्रॉब्लम क्या है, वो 4 लाख पे मेरे को एडवांस टैक्स भरना पड़ेगा। तो मेरे को लगा इन्फोसिस को बोल देता हूँ ना, सर treat 4 lakhs additional income and deduct TDS on this amount also, so that I can save my time in paying advance tax. समझ रहा? Yes, sir. Yes, sir. आप हाउस प्रॉपर्टी इनकम भी डिक्लेयर कर सकते हैं, लॉस भी डिक्लेयर कर सकते हैं, बट व्हेन इट कम्स टू अदर यू कैन डिक्लेयर ओनली इनकम, इसलिए सिर्फ प्लस, नो माइनस। Yes, अब उस sir. प्लस एंड माइनस में इतना है, मतलब हाउस प्रॉपर्टी लॉस डिक्लेयर कर सकते हैं, Yes, पर sir. बिजनेस लॉस डिक्लेयर करोगे तो एम्प्लॉयर विल नॉट कंसिडर। उनको बोला गया है इनकम ही कंसिडर करना है, एक ही लॉस आप कंसिडर कर सकते हैं, हाउस प्रॉपर्टी लॉस। रेट ऑफ TDS एट एवरेज रेट applicable to employee. एवरेज रेट, हाँ एवरेज रेट मतलब हर एम्प्लॉय का एक रेट निकलेगा, टैक्स लायबिलिटी डिवाइडेड बाय टोटल इनकम टू 100। हेलो, Yes, sir. Yes, sir. tax liability divided by total income into 100, that is called average rate of tax. Yes, sir. मतलब क्या, अगर 5,000 एम्प्लॉय है तो 5,000 रेट रह सकते हैं, 5,000 एम्प्लॉय है कोई ऑर्गेनाइजेशन में, तो क्या 5,000 डिफरेंट रेट्स रह सकते हैं। वाई? बिकॉज एवरी एम्प्लॉय गॉट अ डिफरेंट क्लास ऑफ सैलरी। Yes, sir. हमें क्लियर? Yes, sir. Yes, दिस sir. एवरेज रेट इंक्लूडिंग, लिख लो यहाँ पे, इंक्लूडिंग सरचार्ज प्लस सेस इफ एनी। स्टार्टिंग में बोला था ना, 2 केसेस में हम लोग सरचार्ज और सेस ऐड करते हैं, TDS sir. on salary and payment to non-resident. अरे, Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. timing of deduction of TDS only at the time of payment. Timing of deduction of TDS only at the time of payment. बस यही है नटशेल में, तो उससे ज्यादा कुछ भी नहीं है सेक्शन। See, if you are working with more than one employer, you can choose which employer will deduct TDS. Yes. क्यों? Otherwise both will give 2 times basic exemption. Yes, sir. Yes. तो कौन बोलते हैं, अगर आप X एंड Y दोनों से काम कर रहे हो, आप X को बोल सकते हो सर आप मत करो, Y करेगा। अब डोंट से Y को बोल दोगे कि X करेगा। They will exchange the mails saying that सर आप तो भी करो, हम तो भी करेंगे, नहीं तो पूरे सैलरी पे। Yes, sir. हमें क्लियर? Yes, sir. अदरवाइज सेक्शन तो इतना ही है, बस इतना याद रख लो, TDS ऑन सैलरी, Yes, sir. Yes, sir. एप्लीकेबिलिटी ग्लोबली। ओके, यहाँ पे Yes, आ sir. जाओ सेक्शन में। चलाई? Yes, sir. Yes, sir. ये कुछ है कोविड का रिलैक्सेशन बोल के है, मैं बता देता हूँ आपको, डोंट वरी। या समरी, पेयर कौन है, एम्प्लॉयर है। इफ यू ऑब्जर्व, पे Yes, कौन है, sir. एम्प्लॉय है। Employee. कौन क्या क्या कवर्ड है, TDS ऑन सैलरी, क्या Yes. टाइम पे, ओनली एट द टाइम ऑफ पेमेंट पे। इफ यू ऑब्जर्व, Payment. Yes. ओनली एट द टाइम ऑफ पेमेंट। आपके पास भी यही मटेरियल, इफ यू ऑब्जर्व, Yes, Yes, sir. Yes, sir. sir. Yes, sir. मैक्सिमम अमाउंट व्हिच कैन बी पेड विदाउट TDS, ऐसा कोई रिलैक्सेशन नहीं है। If an employee is not subject to taxability because of his basic exemption, no need to deduct TDS. Yes, sir. Yes, अभी sir. अभी ऑफिस के बॉयज रहते भाई, एम्प्लॉय है वो भी ऑफिस का, उसकी महीने की सैलरी 20,000 है, पूरी साल की सैलरी 2.5 लाख से ज्यादा नहीं हो रही, नो पॉइंट ऑफ डिडक्टिंग TDS। कोई स्पेसिफिक रेट है? नहीं, कोई स्पेसिफिक रेट नहीं है। You have to deduct TDS as per the rate applicable to the SSE, that is called average rate. Yes, Yes, sir. sir. फिक्स्ड रेट नहीं आएगा, एवरेज रेट निकालना पड़ेगा हर एम्प्लॉय का। Yes, sir. हमें क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. ये एक स्पेशल नोट है विच यू कैन रीड एंड रिमेंबर। नोट बोल के है सर, थोड़ी थोड़ी चीजों का डिक्लेरेशन देना पड़ेगा एम्प्लॉय को। आप रेंट भर रहे तो कितना रेंट भर रहे, हाउस रेंट अलाउंस। अगर Yes, आपका sir. सेक्शन, हाँ हाउस रेंट अलाउंस है ना, सेक्शन Yes, sir. 10 सबसेक्शन 13 Subsection 13 कैपिटल, है. Yes, sir. LTC सेक्शन 10 सबसेक्शन 5। 5. अगर इंटरेस्ट है तो लोन सर्टिफिकेट, लोन सर्टिफिकेट, Yes, sir. लोन सर्टिफिकेट, इंटरेस्ट सर्टिफिकेट।
और डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C to 80O। अरे मैं इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ बोल के एम्प्लॉयर को कैसा पता चलेगा? चलो आरपीएफ हाँ उसको सर। पता है, मैं एफडी कर रहा है, Yes, एलआईसी sir. भर रहा, उसको कैसे पता चलेगा? बोलो ना। Yes, आप Yes, लोन sir. ले लिए, लोन के ऊपर इंटरेस्ट भर रहे, Certificate कैसे देना पता सर। चलेगा उसको? अरे अगर आप Certificate एम्प्लॉयर से issue। लोन लेते तो पता चलेगा, अदरवाइज यू विल नॉट कम टू नो ना। Yes, sir. Yes, sir. हाँ तो यही मेन पॉइंट है। इफ यू ऑब्जर्व नथिंग इज मोर स्पेशल, हो गया बस। बोलो भाई, Yes, sir. Yes, sir. मैं क्लियर अप टू हियर? जाओ आगे जाओ। Yes, yes, sir. sir. यहाँ पे दो फॉर्म्स, इफ यू ऑब्जर्व फॉर्म 16 एम्प्लॉयर देता है एम्प्लॉई को, Employee को। Yes. आई होप आप भी टिक कर रहे हैं पैरेलली। Yes, हाँ sir. Yes, sir. एम्प्लॉयर दे रहा है एम्प्लॉय को फॉर्म 16। ओके, पूरे साल में एक ही बार देते वो लोग टीडीएस सर्टिफिकेट। Imagine if my form 16, if I give you, you will come to know how much Ashwin is earning in a year through employer. Form 16 Yes, is sir. nothing but a declaration given by employer to the employees. Employee। अगर आपकी साल की सैलरी इतनी, आपके परविजिट इतने, आपके अलेवेंस इतने, आपका एचआर इतना, आपका एलटीसी इतना, आपके डिडक्शन इतने, पीएफ में इतना बैलेंस है, ग्रेच्युटी में इतना बैलेंस है, पूरा डिक्लेरेशन देते वो लोग। फॉर्म Yes, sir. 16 प्रैक्टिकल लाइफ में फॉर्म 16 इतना इंपॉर्टेंट है, गवर्नमेंट बिलीव्स एवरीथिंग इज करेक्ट। फॉर्म 16 में जो है वही करेक्ट है। मतलब अगर कोई 25 लाख कमा के उसमें 2.5 लाख दिखा रहा, दे विल बिलीव हाँ 2.5 लाख ही है बोल के। दैट इज Yes, अ sir. वैल्यू गिवन टू फॉर्म 16। Sir. तो आप फॉर्म 16 में दिखाई हुई चीजों की चोरी नहीं कर पाएंगे आप, बिकॉज आपको चोरी करना है तो आपका एम्प्लॉयर भी चोरी करना है आपके साथ, विच इज Yes. डिफिकल्ट। नेक्स्ट इज परक्विजिट का एक फॉर्म है, फॉर्म 12B। Yes, sir. चल भी Yes, Yes. sir. ओके, एक दो एडिशनल पॉइंट लिख लेंगे हम लोग नोट 1 नॉलेज के लिए। नोट 1, एवरेज रेट ऑफ टैक्स इज इक्वल टू टैक्स लायबिलिटी inclusive of surcharge plus health and education cess divided by total income into 100. Tax liability by total income into 100. बोलो भाई, Yes, sir. ये नोट नंबर 1 है। नोट नंबर 2, employer will provide form 16 to employee with details of perquisites। परक्विजिट का हेडेक क्या है? परक्विजिट का वैल्यूएशन करना पड़ता है, और एवरीवन विल एंजॉय डिफरेंट टाइप ऑफ परक्विजिट। एवरी एम्प्लॉय इज नॉट सेम। किसी को घर चाहिए, किसी को गाड़ी चाहिए, किसी को सर्वेंट चाहिए, किसी को गार्डिंग फैसिलिटी चाहिए। एवरीवन वांट डिफरेंट परक्विजिट। Yes, sir. Along with details of perquisite Yes, sir. in form 12B। मैं डन? Yes, sir. Yes, sir. हाँ ध्यान से, फॉर्म 16 इज इशूड एनुअली। ये दोनों भी सर्टिफिकेट एनुअली है, ध्यान से, बिकॉज फॉर्म 16A इज इशूड क्वार्टरली। स्टार्टिंग में बोला था, Yes, sir. कहाँ है? या नोट नंबर 6 if you observe। hello, Yes, sir. this is issued annually, and whereas form 16A is issued quarterly. Yes, sir. This is only for employees, form 16। other than employees form 16 है। जाऊँ आगे? Yes, sir. Sir. चलो नेक्स्ट सेक्शन एक बार पढ़ लेते हैं, यही होगा तो यही पढ़ा देता हूँ। बताओ नेक्स्ट सेक्शन। अब स्टार्टअप्स का अमेंडमेंट है, सेपरेटली बताता हूँ आपको, अभी छोड़ दो। स्टार्टअप के रिलेटेड अमेंडमेंट है, सेपरेटली बताता हूँ, लीव नाउ है, अमेंडमेंट है मेरी बुक में है, बताऊंगा, डोंट वरी। नेक्स्ट वन इज 192। 92A। 192A सुनना है, व्हाट इज 192A ऑल अबाउट? See, when you withdraw Like from a- RPF Withdrawal after for 5 years, RPF. Yes, sir. generally nothing is taxable if you remember। Yes, sir. Yes, sir. 99% नहीं withdraw करना चाहिए। Even if you are leaving employment, let the money be there in RPF। Yes. But if you terminate your RPF account and withdraw the money, then the amount would become taxable। Yes, sir.
ओके अब आराम से, कौन विड्रॉ कर रहा है पैसा? एम्प्लॉई। एम्प्लॉय पैसे देने वाला कौन है? जनरली एम्प्लॉयर Employer. और ट्रस्टी, एम्प्लॉयर जहाँ पे आप डिपॉजिट कर रहे हो पैसे। हेलो, Yes, sir. like TDS, this amount is also taxable on payment basis. यस सर Yes, sir. पर यहाँ पे एक रिलैक्सेशन है, TDS is applicable only if the amount withdrawn is more than 50,000. है ना, करेक्ट है ना? यस सर या exceeds 50,000। 30,000 था शायद पहले. हाँ पहले 30 था, 50 कर दिया, अमेंडमेंट है ना। Okay. सुनना Yes. है नेक्स्ट, रेट कितना है? ओनली 10%। जब रेट दिया है तो नो सरचार्ज नो सेस। हाँ Okay, यस sir. सर यहाँ पर नीचे कुछ बोला है, अगर पैन नहीं दे रहा एम्प्लॉई तो मैक्सिमम मार्जिनल रेट 20% 20%. 20% और वो 206 है। ये Okay. MMR अलग चीज है। व्हाट इज मैक्सिमम मार्जिनल रेट? हाईएस्ट रेट ऑफ टैक्स एप्लीकेबल टू इंडिविजुअल। व्हाट इज द हाईएस्ट रेट ऑफ टैक्स एप्लीकेबल टू इंडिविजुअल? 30 30. यस सर 30 प्लस सरचार्ज एप्लीकेबल है तो सरचार्ज प्लस सेस भी, यस यस Yes, sir. दैट्स कॉल्ड MMR। Am I clear? Yes, sir. यस Am I सर right? यस सर या प्लीज लिखो नेक्स्ट सेक्शन। ये जो चीज बन रही है अभी एग्जाम के लिए बन रही है, जितना बोला उतना लिख लो, बस है, भरोसा रखो। नेक्स्ट सेक्शन नंबर 192A, TDS on withdrawal from RPF। TDS on withdrawal from RPF आ गया मेरे लिए तो। TDS on withdrawal from RPF। पेयर, यस सर पेयर जनरली कौन है? एम्प्लॉयर, एम्प्लॉयर एम्प्लॉयर गलत लिख दिया ना, एम्प्लॉयर और ट्रस्टी। ट्रस्टी जहां पे आप पैसे डिपॉजिट करते हो, Yes, sir. जनरली Yes, it is sir. advisable the money should not be with employer, it should be kept with SBI or any other bank, advisable Yes. रहेगा। पेई कौन है? पेई ऑब्वियसली एम्प्लॉय है, बोलो ना भाई। yes sir यस सर TDS on what? TDS is on what? TDS is on withdrawal from RPF, recognized provident fund। सी 5 साल के बाद विड्रॉ करोगे तो एग्जाम रहेगा, फिर रिमेंबर सैलरी Yes, चैप्टर में बोला। रेट ऑफ TDS एट द रेट ऑफ 10%, ब्रैकेट में है मैक्सिमम मार्जिनल रेट इफ नो पैन। मतलब ये तो 206 से भी भयंकर सेक्शन है ये MMR, बिकॉज एटलीस्ट 206 में Yes, sir. 20% इज द टैक्स रेट, Yes, sir. और यहाँ पे कितना है? स्ट्रेट अवे एट द रेट ऑफ व्हाट सर? 30% 30 plus cess. सरचार्ज प्लस सेस आल्सो। यस सर Yes, sir. Timing of deduction of TDS only at the time of payment. Only at the time of payment. अब special point क्या है? Note TDS will not apply. TDS will not apply if एक Payment. bit आफ्टर 5 इयर्स is after 5 years. less than or equal to 50,000. नहीं मेरे भाई, अच्छा. पेमेंट इज लेस देन और इक्वल टू 50,000 इन अ फाइनेंशियल ईयर। एक साल में अगर 50,000 से ज्यादा नहीं पेमेंट हो रहा है, नो TDS। यस सर डन ब्रो? यस एक बार चल भी हार्ड नहीं है, नो रिवाइज करना पड़ेगा। सम इंपॉर्टेंट सेक्शंस आर देयर, विल सी स्लोली। एक बार सुनो, एक बार रिवीजन करते हैं सेक्शन नंबर्स का, बिकॉज विल टेक अ ब्रेक। आई गॉट वन मोर सेशन 6 to 8 फॉर समवन। सुनना आराम से। 192 आके TDS ऑन सैलरी। यस 192A TDS दिख रहा है ना स्क्रीन? Yes, sir. Yes, sir. 192A विड्रॉल फ्रॉम, कीवर्ड्स रख लो, याद रख लो, RPF। RPF 193 इंटरेस्ट सिक्योरिटीज। Security. 194A इंटरेस्ट अदर देन Other than सिक्योरिटीज। security. 194 डिविडेंड। Dividend. Yes, sir. 194B and BB winnings। Winnings. जनरल विनिंग 194B, स्पेसिफिक विनिंग 194B। Horse winning 94 BB. 194C Contractors and Contractors and subcontractors. subcontractors DGH commission, Commission. commission insurance commission, insurance commission lottery A- commission, Lottery commission. Agency or commissions. any other commission। yes sir DA life DA, insurance life receipts insurance. from insurance। receipts of D and DA दोनों भी इंश्योरेंस है, देखो इसलिए बाजू बाजू में Yes, रखा sir. है। yes sir
पर Yes, वो sir. कमीशन आ रहा है, यहाँ पे पैसा आ रहा है. Yes, sir. Receipts from life insurance policy if not exempt. Policy. 99% पैसा एग्जाम रहता है Yes. 1010D के नीचे. अगर नहीं है तो टैक्सेबल TDS लगेगा. Yes, Next 194J Payment for Payment technical Yes. service, technical services, royalty, professional fees, Technical services, payment to professional fee, director, royalty, non-compete fee, non-compete fee, and director. sir, payment to directors not in the nature of salary. 194I and IB both are for rent. rent, बस इतना याद रख लो, rent. Yes. 194 LA and IA both are Purchase. Purchase of purchase of immovable immovable property. Yes. Compulsory acquisition other than compulsory acquisition. yes, sir, 194 IC joint development agreement. Joint Development. development agreement. Special section MNO MNOE, E मत बोल देना, E Individual बोलना, ownership. Yes. है ना? MNOE. M क्या है? If you remember? Certain individuals. certain individuals have ये to, headache है. Government एक से लालच कर रही है, एक से relaxation भी दे रही है. Yes, Yes, sir. sir. छोटे छोटे इंडिविजुअल्स अगर बड़े बड़े पेमेंट करते हैं तो 194 M. M, Yes. ना कि And अपना पैसा cash Cash withdrawal, All of, Cash और withdrawal. के Over and e-commerce above. operators. commerce operator, Non-resident making payment to non-resident sports person, Non-resident sports person, entertainer entertainer, or association. association, yes, sir, श्रीलंका क्रिकेट एसोसिएशन, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, उन लोगों के लिए. IPL, IPL फॉरेन है क्या? नहीं सर, इंडियन है Oh, लेकिन nice. प्लेयर्स Foreign फॉरेन players पेमेंट रहते करते हैं हैं, ना, हाँ, एसोसिएशन को पे कर रहे हैं. वेरी गुड. हाँ, फॉरेन प्लेयर्स को भी करेंगे तो कवर हो जाएगा. हाँ, Okay. कवर हो जाएगा. एसोसिएशन को पे करेंगे तो भी कवर होगा. सर वहाँ के खिलाड़ी अगर इंडिया के खेलना है तो एसोसिएशन को फीस पे करनी पड़ती है. कम ऑन. yes, sir, Yes, sir. Done? तो आई एम Yes, स्टॉपिंग द क्लास हियर बिकॉज मैं भी 15 मिनट का ब्रेक ले लेता हूँ. एक Yes, और sir. सेशन मोस्टली एट 8:30 इफ यू डोंट माइंड कैन रिज्यूम 8 और 8:30. yes, sir, anytime, Yes, sir, sir. 8:30 मैसेज देता हूँ. और 2 घंटे. हाँ, recording. recording off.